السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ کی 15 ریاستی شاہراہوں کو قومی شاہراہوں پر ترقی دینے کی مرکز سے درخواست۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دیگر وزراء کی ملاقات۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کا 8,437 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ پیش۔ ایڈورٹائزمنٹ اور سینیٹیشن میں ہوئی بے قاعدگیوں پر ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کا میئر نے کیا اعلان۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں 1,80,00,000 روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ بیرسٹر اویسی کے MP لیڈ فنڈ سے حلقے کی نئی صورت گری، عوام کا والہانہ استقبال۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے اقلیتی طلباء کے لیے اوورسیز اسکالرشپ، درخواستوں کی آن لائن وصولی کا ہوا آغاز۔ اور نارسنگی کے قریب دلقراش سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک، تیز رفتار کار بے قابو ہو کر آؤٹر رنگ روڈ سے نیچے گر پڑی۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ beside رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ کی قومی شاہراہوں کی ترقی، ریاستی شاہراہوں کو قومی شاہراہوں پر ترقی دینے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ بٹیو کمار کا عمارت شوارے کے وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران تلنگانہ کی 15 ریاستی شاہراہوں کو قومی شاہراہوں پر ترقی دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ حیدرآباد سری سیلم 4 لین ایلیویٹڈ کوریڈور، حیدرآباد کلوکرتی شاہراہوں کو 4 لین پر ترقی دینے کا مطالبہ کیا۔ ریجنل رنگ روڈ کے تحت حیدرآباد وجےواڑہ قومی شاہراہوں کو 6 لائن کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ CRIF سے دیے جانے والے فنڈز میں اضافہ کرنے کی درخواست کی گئی اور نلگنڈا میں ٹرانسپورٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ قائم کرنے، نلگنڈا شہر کو بائی پاس روڈ منظور کرنے وزیر کوماٹی ریڈی نے مرکزی وزیر سے درخواست کی۔
अजीम तर बलदिया हैदराबाद के मेयर विजय लक्ष्मी ने 2024-25 का 8,437 करोड़ रुपए का सालाना बजट पेश किया है। आम बजट 7,937 करोड़ रुपए है, जबकि डबल बेडरूम के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में मख्तस किए गए हैं। बजट पर मुबाहिस के दौरान मजलिस के रुकने असम्बली माजिद हुसैन ने कहा कि बजट की आदाद शुमार वाज़े तौर पर नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में 3,646 करोड़ आमदनी बताया गई है, जुमला खर्च 3,500 करोड़ बताया गया है। तमाम अखराजात के बाद फाजिल बजट 450 करोड़ के साथ जीएचएमसी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमदनी से ज्यादा खर्च है, हुकूमत कम से कम 3,000 करोड़ बजट में रखना चाहिए। इसके बावजूद 1,100 करोड़ ही मख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ के बकाया जात हैं। दीगर पार्टी के अरकान ने भी बजट के मुबाहिस में हिस्सा लिया। बादअज़ां बजट को मंजूरी दे दी गई। अजीम तर बलदिया हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास के दूसरे दिन भी अवामी मसाइल पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। मेयर विजय लक्ष्मी ने एडवर्टाइजमेंट और सैनिटेशन में हो रही बेकायदगियों पर हाउस कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया। इजलास के आगाज के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जारी सवाल पर बहस का आगाज हुआ। मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हालात से मेयर को वाकिफ करवाया। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मसला पर रुकने बलदिया सुहेल कादरी के सवाल पर मेयर ने तयक़्क़ुन दिया कि 22 फरवरी जुमेरात को कमिश्नर के हमराह वो मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा करेंगी। इसके बाद सैनिटेशन, नालों की सफाई, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। खास तौर पर सैनिटेशन के मसले पर तमाम कॉरपोरेटर्स ने शिकायत की। मजलिस के फहद बिन अब्दाद और दीगर कॉरपोरेटर्स ने सफाई के मसाइल को उठाते हुए कहा कि हर जगह अमले की कमी है। सेवरेज मशीन की कमी का भी मसला उठाया गया। कॉरपोरेटर्स का कहना था कि सेवरेज मशीन के इस्तेमाल में बेकायदियां हो रही हैं, इसके लिए हाउस कमेटी तश्कील दी जाए। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के बारे में अहदेदारों की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। शहर में एक ही कॉलोनी में अलग अलग टैक्स लिया जा रहा है। इसके अलावा टैक्स अमले को दीगर खिदमात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से टैक्स वसूली पर असर पड़ रहा है। तेलंगाना में ग्रुप 1 की 563 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 23 फरवरी से दरख्वास्तें दाखिल की जा सकेंगी। तेलंगाना की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने साबिका हुकूमत का एलामिया मनसूख कर दिया है। ग्रुप 1 के उम्मीदवार तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 23 फरवरी से 14 मार्च तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। दरख्वास्तों को दुरुस्त करने 23 मार्च से 27 मार्च तक का मौका दिया गया है। इब्तदाई इम्तिहान ऑब्जेक्टिव टाइप मई जून में मुनक्किद होगा। मेन इम्तिहान रिवायती तर्ज पर सितंबर अक्टूबर में मुनक्किद होगा। दरख्वास्तें ऑनलाइन ही दाखिल की जाएं। माजी में 2 मरतबा 2022 और 2023 में ग्रुप 1 के इम्तिहान मुनक्किद किए गए थे, जो किसी न किसी वजह से तनाज़ात का शिकार हो गए। बिलाखिर पीर को नए कमीशन ने इसके एलामिया ही को मनसूख करते हुए अब एक नया एलामिया जारी कर दिया है। ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 20 फरवरी से दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 20 मार्च ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। वाज़ेह है कि बैरूनी ममालिक के यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के लिए महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की ख्वाहिश की है। बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट में तालीम हासिल करने वाले तलबा अपनी दरख्वास्तें वेबसाइट पर दाखिल कर सकते हैं। ई पास पोर्टल 20 फरवरी से कारकर्द होगा और 20 मार्च शाम 5 बजे तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकेंगी। इसी तरह मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर दफातर में हार्ड कापी और ज़रूरी दस्तावेज़ात 15 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं। बीआरएस कायद व साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी जैसे शख्स वजीर आला बनने पर उन्हें अफसोस हो रहा है। शादनगर में पार्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि जिंदगी में कभी जय तेलंगाना नहीं कहा और न ही किसी जहदकार को एक फूल तक पेश किया
और तो और जहदकारों के खिलाफ बंदूक लेकर घूमे ऐसे शख्स को वजीर आला की कुर्सी पर देखकर उन्हें काफ़ी अफसोस हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की शिकस्त एक स्पीड ब्रेकर है, फिर से हम स्पीड पकड़ लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं होगी, बीआरएस अरकान पार्लियामेंट कामयाब होंगे तो तेलंगाना के मसाइल पर जदोजहद करेंगे। महबूब नगर से बीआरएस रुकने पार्लियामेंट को कामयाब करें, मुस्तकबिल बीआरएस का है और पार्टी कारकुन सख्त मेहनत करें। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्लिमानी हल्के के तहत पुराना पुल और मुगलपुरा बलदी डिवीजन में अपने एमपी लेड फंड से 1 करोड़ 82 लाख रुपए मालियत के मख्तस तरक्याती कामों का आगाज किया। उन्होंने हैदराबाद हल्के को मुल्क के लिए एक मिसाली बनाए रखने और आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पुराना पुल डिवीजन के तहत पारदीवाड़ा में उन्होंने 52,40,000 रुपए की लागत से न्यू कम्युनिटी हॉल की पहली मंजिल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मकामी अफराद इस कम्युनिटी हॉल का मुख्तलिफ तकारीब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस कम्युनिटी हॉल की तोसी के लिए मजीद 20 लाख रुपए अपने फंड से जारी करने और यहाँ मुख्तलिफ तकारीब के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया और दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी का भी तयक़ुन दिया। इस मौके पर चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग, कॉरपोरेटर सोनम राज मोहन, हल्का चार मीनार के इंचार्ज मोहसिन बिन अब्दुल्लाह बलाला, बलदी ओहदेदार, मजलिस इब्तदाई के सदूर व मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस ने मुगलपुरा बलदी डिवीजन के तहत सुल्तान शाही में न्यू कम्युनिटी हॉल स्कूल की इमारत की तामीर का आगाज किया, जिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। ग्राउंड फ्लोर पर कम्युनिटी हॉल, इसकी इमारत में असरी क्लासरूम्स, स्टाफ व असातिज़ा के कमरे, इस पर मजीद 2 फ्लोर तामीर किए जाएंगे। जहां ऐसे सरकारी स्कूल जो खस्ता इमारतों में काम कर रहे हैं वहां मुंतकिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन सरकारी स्कूल्स को उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा ताकि मेयार तालीम बुलंद हो। मजलिस के अरकान मुकर्रना मीर जुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग, कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला, मम्मी भाई लतीफ़, सरकारी ओहदेदार, मजलिस इब्तदाई के सदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुन व अवाम ने इस तकरीब में शिरकत की। सदर मजलिस का इन दोनों मकामात पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने याकूतपुरा और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़ाजात में भी 2.5 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का ऐलान किया। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में और हल्के असम्बली चार मीनार में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एमपी लैड के फंड के जरिए 1 करोड़ 29 लाख की लागत से सुल्तान शाही में 7,000 स्क्वायर फुट पर एक कम्युनिटी हॉल और स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पर इंशाल्लाह 9 क्लासरूम और ग्राउंड फ्लोर पर स्टाफ के लिए कमरे और बैतुल खला टॉयलेट का इंतज़ाम होगा। ये फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में कामयाबी के बाद और भी एडिशनल 2 फ्लोर वहाँ पर बनाए जाएंगे। और मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से और वोट से कामयाब करिए। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपकी बरतरी को बरकरार रखिए। ये पूरे वतन अजीज की ये पार्लिमानी सीट आपकी आवाज़ है गरीब और मजलूमों की, और इसको हमने अपने इत्तेहाद से, अपने खून पसीने से मजबूत किया है। उन ताकतों को पहचानिए जो आज हमारे दरमियान में आस्तीन के सांप बनकर, बीजेपी के एजेंट बनकर, छोटी बीजेपी बनकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए। तो ऐसे चेहरों को हमको बेनकाब करना है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद, किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट पर हमारे एमपी को मुंतखब करेगा। और भी दीगर पार्लिमानी हल्कों पर गौर किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, बीजेपी को
उनके नापाक इरादों में नाकाम करना है। और मुल्क के वजीर आज़म जो बार बार बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वतन अजीज में मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, समाजी तौर पर। मस्जिदों को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं, शरीयत में मदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा उत्तराखंड में बनाया गया, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे बुजुर्गों ने जिस चीज़ को हासिल किया हम उसको बरकरार रखें और अपनी बरतरी को बरकरार रखें। शुक्रिया। तेलंगाना से राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार अनिल कुमार यादव बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने असेंबली सेक्रेटरी से रुकन राज्यसभा की कामयाबी का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इस मौके पर पार्टी के दीगर अरकान मौजूद थे। राज्यसभा के इंतखाबात 27 फरवरी को होने वाले थे। तेलंगाना के जुमला 3 नशिस्तों के लिए 2 अरकान कांग्रेस के रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव और बीआरएस पार्टी के एक रुकन रवि राजू ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। पर्चे नामजदगी की जांच का अमल मुकम्मल होने के बाद तीनों उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करार देने का सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। कामयाबी का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अनिल कुमार यादव ने अपने वालिद व साबिक रुकने पार्लियामेंट व प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव के हमराह असेंबली से जुलूस की शक्ल में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने कहा कि पार्टी इंचार्ज से बीजेपी खौफजदा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर कामयाब होगी। बीजेपी एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर पाएगी, इसलिए बीजेपी कायदीन दीपदास मुंशी पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात लगाएंगे तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि एनवीएस प्रभाकर फौरी मुआफी मांगे और जो इल्जाम लगाया है उसको वापस लें। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान सुजाता पाल ने कहा कि बीजेपी खवातीन मुखालिफ पार्टी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनवीएस प्रभाकर को खवातीन की ताकत के बारे में नहीं मालूम। उन्होंने बगैर सबूत के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज दीपदास मुंशी पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एनवीएसएस प्रभाकर के पास अगर कोई सबूत हैं तो मंजर आम पर लाएं। उन्होंने कहा कि एनवीएसएस प्रभाकर ने खवातीन से अपनी मुखालिफत का सबूत दिया है। हल्का असम्बली कारवान में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सिलसिले में सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने मोती दरवाजा अहमद कॉलोनी का दौरा करके NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया और कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। दौरे में मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने चिराग अली नगर और किशन बाग के कब्रस्तानों का दौरा करके अहाताबंदी के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों को कब्रस्तान की अहाताबंदी करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में 4TV की जानिब से एक खबर टेलीकास्ट की गई, जिसका सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने सख्त नोट लेते हुए मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद कादिर को चिराग अली नगर रवाना किया। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर बलदिया से मंजूरी हासिल कर ली गई है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। दूसरी तरफ रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर बलदिया टी वेंकन्ना के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने ज़र इल्तिवा और जारी तरक्याती कामों के बारे में बात की। उन्होंने जोनल कमिश्नर से कहा कि वो माह रमज़ान मुबारक से पहले तमाम कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। इजलास में हल्के असम्बली बहादुरपुरा के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स के अलावा GHMC के अहदेदारों ने भी शिरकत की। हैदराबाद के मजाफात में पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक यह हादसा नारसंगी के करीब उस वक्त पेश आया जब आउटर रिंग रोड से गुजरने वाली कार बेकाबू होकर रिंग रोड से नीचे गिर पड़ी। मालूम हुआ है कि कार सवार अफराद गचीबावली से शमशाबाद की सिमत जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरे नौजवान को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दीगर 4 जख्मी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं।
تلنگانہ کی میدک ضلع میں ایک موٹر بائک پر سفر کرنے والے 4 نوجوانوں کی بائک کار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ رانگ سائڈ پر سفر کرنا ان نوجوانوں کو مہنگا پڑ گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع میدک میں قومی شاہراہ 161 پر اللہ درگم منڈل کے بداڈیڈ پورا میں کار اور بائک کے تصادم میں 3 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ بابنا پیٹ منڈل کے پچرام گاؤں کے گڈم پربھاکر، گڈم مہیش اور اللہ درگم کا رہنے والا سری کانت سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے، جبکہ ٹڈم مسایا زخمی ہو گیا۔ یہ چار نوجوان سنگاریڈی ضلع کے اندول منڈل میں ایک منگنی کی تقریب میں شرکت کے بعد اپنے آبائی گاؤں واپس ہو رہے تھے۔ جب وہ پیڈاپور پہنچے، ان کی بائک سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی۔ ایک ہی بائک پر سفر کرنے والے 4 نوجوانوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے کریم نگر کے آدرش نگر میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آدرش نگر علاقے کے ایک مکان میں اچانک آگ لگ گئی اور آگ نے آس پاس کے مکانات کو اپنی زد میں لے لیا۔ اس حادثے میں 5 گیس سلنڈر پھٹ پڑے، جس کے ساتھ ہی زوردار دھماکے کی آوازیں سنائی دیں اور آگ نے شدت اختیار کر لی۔ اطلاع ملتے ہی فائر انجنوں کو طلب کر کے آگ بجھانے کا کام کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ یہاں رہنے والے افراد میڈارام جاترا گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہ گئے۔ آگ لگتے ہی مقامی افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ حادثے کی وجوہات کا فوری پتہ نہیں چل سکا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جیولری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارا ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ beside رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ کی 15 ریاستی شاہراہوں کو قومی شاہراہوں پر ترقی دینے کی مرکز سے درخواست۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور دیگر وزراء کی ملاقات۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کا 8,437 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ پیش۔ ایڈورٹائزمنٹ اور سینیٹیشن میں ہوئی باقاعدگیوں پر ہاؤس کمیٹی تشکیل دینے کا میئر نے کیا اعلان۔ حلقہ اسمبلی چار مینار میں 1,80,00,000 روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ بیرسٹر اویسی کے MP لیڈ فنڈ سے حلقے کی نئی صورت گری، عوام کا والہانہ استقبال۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے اقلیتی طلباء کے لیے اوورسیز اسکالرشپ۔
درخواستوں کی آن لائن وصولی کا ہوا آغاز۔ اور نارسنگی کے قریب دلقراش سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک، تیز رفتار کار بے قابو ہو کر آؤٹر رنگ روڈ سے نیچے گر پڑی۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔